This is the chapter number 32 and we are reading Africa continent physical features. And today we will read about the climate and wildlife of Africa. So let's see. Most of the area of the African continent extend between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, and the equator passes through its center. Thus, major part of the continent lies in the tropical zone. Only some parts of the northern and southern Africa fall in the temperate zone. It is in fact the most tropical of all the continents. The temperature is very high throughout the year. The highest temperature in the world has been recorded at A1 Ajaccio, Libya as 58 degrees Celsius. The temperature is moderate only on high mountains and plateaus. Even on the plateaus, the temperature during the day is very high, although the nights are cool. The rainfall is uneven. Study the map of annual rainfall of Africa, map number 22. The belt lying along the equator on both sides has not and wet climate. It rains almost daily and there is only one season, namely the hot wet summer season. Due to the abundance of heat and moisture, most of the region is covered with a thick forest called the tropical rainforest. It has variety wildlife. अफ्रीका कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में फैला हुआ है, और इक्वेटर जो है इसके सेंटर से गुजरती है। इसलिए इस कॉन्टिनेंट का जो मेजर पार्ट है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। सिर्फ नदर्न और सदर्न अफ्रीका का कुछ पार्ट ही है जो कि टेम्परेट जोन में आता है। दूसरे कॉन्टिनेंट्स की अपेक्षा यहाँ पर ट्रॉपिकल जोन का बहुत ज़्यादा असर रहता है, और यहाँ जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो पूरे ईयर हाई रहता है। संसार का सबसे गर्म स्थान जो है वो अल जजीजिया लीबिया में स्थित है। जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। जो प्लेट्यूज वाले पार्ट हैं वहाँ पर दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रात में टेम्परेचर कम हो जाता है। अफ्रीका में जो बारिश होती है वह भी, उसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलग अलग होता है। अफ्रीका का जो बारिश वाला मैप है उसे अब हम रीड करेंगे। अधिक गर्मी और अधिक बारिश के कारण इस एरिया में ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े वृक्ष वाले घने वन पाए जाते हैं, जिन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो चिल्ड्रन, दिस इज द मैप नंबर 22 अफ्रीका एनुअल रेनफॉल, और इसमें आप स्टडी करेंगे कि जो ये ग्रे कलर से है ये 200 से अबोव रेनफॉल यहाँ पर होती है, और उसके बाद ये ग्रीन कलर से जहाँ पर शो किया गया है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है, और जो ये लाइट ग्रीन कलर से है इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है, और जो येलो कलर से एरिया जो शेडेड किया गया है उसमें 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है। चिल्ड्रन, आप देखिए ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर रेड सी के साइड में है, ये मेडिटेरेनियन सी के साइड में है। यहाँ पर पूरा एरिया जो यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल है ये आप देख रहे हैं, डार्क जो ग्रे कलर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। The savanna region extends to the north and south of the equatorial climate, where the summers are hot but the winters are moderate. Rainfall occurs during the summer season. This type of climate is found in Sudan and is known as the Sudan or the savanna type of climate. This type of climate is found in a very large part of the continent. This region is covered with tall and coarse grasses known as savanna or the elephant grass. It is the homeland of a variety of grass-eating animals and wild beasts. It is known as the zoo of the world. Beyond the savanna, both in the northern and in the southern part of Africa, there are extensive deserts, the Sahara and the Kalahari deserts. The highest temperature in the world is recorded here. There is almost no rainfall. Thorny bushes are the vegetation found here.
In the region of northwest and southwest of the desert climate lies the area of the Mediterranean climate. The summers are dry here and it rains during the winter. Temperate grasslands are found in South Africa, which is known as वेल्ड। तो चिल्ड्रन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नॉर्थ और साउथ में सवाना रीजन फैला हुआ है, जहाँ का इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, और वहाँ जो समर्स होती हैं वो हॉट होती है, लेकिन जो विंटर होती हैं वो नॉर्मल रहती है, और जो बारिश होती है, रेनफॉल होता है, वो समर सीज़न में होता है। और इस तरह का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादातर सूडान कंट्री में पाया जाता है, और जिसे सूडान या सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट बोला जाता है। इस तरह का क्लाइमेट इस कॉन्टिनेंट के बहुत ज़्यादा पार्ट में पाया जाता है, और इस एरिया में बड़ी बड़ी घास उगती है जिसे सवाना या फिर एलिफेंट ग्रास भी बोला जाता है। और इस प्रदेश में घास खाने वाले विभिन्न प्रकार के एनिमल्स और ऐसे एनिमल्स भी पाए जाते हैं जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। और यह जो एरिया है यह संसार का सबसे बड़ा जू कहलाता है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर के रूप में विख्यात है। सवाना टाइप की क्लाइमेट के दोनों ओर नॉर्थ एंड साउथ में डेजर्ट क्लाइमेट पाया जाता है, और नॉर्थ में सहारा और साउथ में कलाहारी डेजर्ट्स हैं। और विश्व के जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर हैं वो इसी एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ जो बारिश होती है नाम मात्र की होती है, और यहाँ पर थोर्नी बुशेस ही पाई जाती हैं। साउथ अफ्रीका में टेम्परेट ग्रासलैंड पाया जाता है जो कि वेल्ड के नाम से जाना जाता है। चिल्ड्रन, वी विल रीड अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑफ द अफ्रीका इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑल्सो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो।